السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، صوفی سفر محمد علی علوی حاضر خدمت۔ ہم نے سیرت النبی کے عنوان سے قدم بقدم جلد اول تالیف عبداللہ فاراق، تو ہم نے یہ آب زمزم کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، منت مانی یا دعا مانگی کہ اگر تو آب زمزم کو کھودنے میں میری آسانی پیدا کر دے میرے لیے، تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ تو حضرات گرامی، عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دو۔ یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرد دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ ذبح کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا،
कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नज़र आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल ने उनसे, उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबुव्वत का नूर चमकता होगा। यूँ ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन ये बात उसके जहन में आई। उसने सोचा, हो ना हो यही वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। सुभान अल्लाह। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली है। इसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मरतबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर से और हर बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उसका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के मोहल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में उसका नाम अहमद है और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रवायत बयान की है कि उसको सही करार दिया है कि सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। मैं जब अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के मोहल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई थी। इस बशारत का ज़िक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तरह वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब कि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफ़िले के साथ तजारत के लिए गए थे। इसी दौरान वो बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। उनकी वालदा बनु नज्जार से थीं। हज़रत अब्दुल्ला इस जगह
1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल फरमा गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बग़ैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। हज़रात गिरामी, ये सीरतुन नबी का आज का सिलसिला था, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला के बारे में, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं, पूरी उनकी हिस्ट्री बताई गई है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।